আপনারা দেখছেন WB24 নিউজ, দিনে রাতে জনতার স্বার্থে। আমি তো মনে করি শুভেন্দু অধিকারী চলে যাওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত সবাই এক কাট্টা হয়ে গেছে এবং আমরা লড়াই করি। আমরা তো অনেক লড়াই করেছি, আমরা কি লড়াই করিনি? আপনারা বলুন তো, 1992 সাল 93 সাল মালদার গাজলে যখন যুব কংগ্রেসের সভাপতিকে খুন করা হলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আমরা ছুটে গিয়েছিলাম গাজলে, মালদার গাজলে। আমরাই তো লড়াই করেছিলাম। 1993 সালের 7ই জানুয়ারি যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লালবাজারে রাত্রি 2টোর সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তখন আমরা 7 জন ছিলাম। সুব্রত বক্সী, ফিরোজ হাকিম, সোনালী গুহ, অরূপ বিশ্বাস, আমি, অশোক চক্রবর্তী আর গৌতম যে মারা গেছে, আমরা ছিলাম। আমরাই তো লড়েছি চমকাই তলায়। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আমরাই তো লড়েছি, আমরাই তো লড়াই করেছি। অযোধ্যা হিলসের উপরে 11 জন শিডিউল ট্রাইব মহিলাকে যখন ধর্ষণ করেছিল সিপিএমরা, আমরাই তো পুরুলিয়ার মাটিতে আমরাই লড়েছিলাম, আমরাই তো বাঁকুড়ার মাটিতে লড়াই করেছিলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের অপর একটা নাম, সেই নাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং প্রতিবাদ, তার নামই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই আগামী দিন লড়তে হবে যেভাবে লড়েছি, যেভাবে 2011 সিপিএম এর বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি। একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সহসাথীদের নিয়ে লড়াই করে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আজ সিপিএম কে একদম মুছে দিয়েছে পশ্চিম বাংলায়। তেমনি করে আবার একটা লড়াই আপনাদের লড়তে হবে, আবার একটা লড়াই 2021-এর লড়াই। এই লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই, লড়াই যারা মহাত্মা গান্ধীকে মেরে ফেলেছিল সেই রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াই সমস্ত যারা ধর্মে বিদ্বেষ ছড়ানো করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াইটা লড়তে হবে, এ লড়াইটাতে জিততে হবে। যেমন করে সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করে সিপিএম কে আজকে ইতিহাসের পাতায় আমরা ঠেলে দিয়েছি। 2021-এর মের পর ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা আগামী দিনে ইতিহাসের পাতায় ফেলে দেবো। রাজি আছেন? লড়তে রাজি তো? পারবেন তো লড়তে? আপনারা অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে পারবেন কি পারবেন না? যেদিনকে আপনারা আবার, আমি ভাটপাড়ায় আসবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, যেদিনকে আপনারা ভাটপাড়ার মাটিতে অর্জুন সিং এর গাড়ির চাকা চালাতে দেবেন না, সেদিন আবার ভাটপাড়ায় আসবো। মস্তানটাকে দেখে নিতে চাই। অনেক গুন্ডাবাজি করেছো, অনেক বাজে কথাবার্তা বলেছো, অনেক কিছু করেছো, আমার কনস্টিটিউয়েন্সি অনেক বাজে কথা বলেছো। শুনে রাখ, তোর মতো গুন্ডা, তোর মতো একটা অশিক্ষিত, তোর মতো গুন্ডা, তোর মতো দাঙ্গাবাজ, তোর মতো বাংলা মালখা পার্টি বাংলার রাজনীতিতে একটাও জন্মায়নি রে। তুই হচ্ছিস সেই নিকৃষ্টতম, তুই অর্জুন সিং, তুই হচ্ছিস সেই নিকৃষ্টতম। তোর গলায় কাঁদিতে তোর বাহুবলি বলিস না, সিআইএসএফ ছেড়ে দিয়ে মাঠটা শুধু দেখিয়ে দিস, দিনটা শুধু বলে দিস, আমরা তোর সঙ্গে লড়ে দেখিয়ে দেবো লড়াই কাকে বলে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে। আমাদের মঞ্চে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী, উত্তর 24 পরগনা
হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ওনাকে আচ্ছা আমি দয়া করে স্টেজটা একটু খালি করবেন, অতিরিক্ত ভার হয়েছে স্টেজে, আপনারা একটু কাইন্ডলি স্টেজ থেকে খালি করবেন। স্টেজে আমাদের ভিআইপিরা রয়েছেন। এবার আমি ছোট্ট একটু অনুষ্ঠান আছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন ধরমপাল গুপ্তা এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেবেন মহিলা সভানেত্রী সীমা মণ্ডল। এরপর উত্তরীয় পরিয়ে দেবেন সীমা মণ্ডল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। এরপর পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন আমাদের পৌর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিমকে ধরমপাল গুপ্তা উত্তরীয় পরিয়ে দেবেন দেবজ্যোতি ঘোষ। উত্তরীয় দাও, পিছনে আছে, উত্তরীয় দাও। সোমনাথ শ্যামকে আমি সামনে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। এবার গোপাল রাউতকে অনুরোধ করব পুষ্পস্তবক তুলে দিতে আমাদের অধ্যাপক সৌগত রায়কে। অধ্যাপক সৌগত রায় এসছেন, ওনাকে পুষ্পস্তবক তুলে দেবেন গোপাল রাউত এবং উত্তরীয় পড়িয়ে দেবেন আমাদের কাউন্সিলর মিলি দত্ত মহাশয়। মিলি দত্ত উত্তরীয় পড়িয়ে দেবেন সৌগত রায় মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পার্থ ভৌমিক, আমাদের লড়াকু নেতা, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের লড়াকু নেতা, আমাদের অভিভাবক পার্থ ভৌমিক আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। পার্থ ভৌমিককে পড়িয়ে দিচ্ছেন উত্তরীয় দেবজ্যোতি ঘোষ। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম অধ্যাপক এবং সাংসদ সুবক্তা মাননীয় সৌগত রায় মহাশয়কে। ठीक है अरे भाई नीचे वाला कैमरा नीचे वाला ना नमस्कार। अच्छा अभी हमारे सुजाता मंडल उपस्थित हुए हैं, जो बीजेपी को छोड़ के अपनी पति से झगड़ा करके ममता बनर्जी के साथ शामिल हुआ। अब ताली बजा के उनको स्वागत कीजिए। नमस्कार। जरा शांत होके सुनिएगा, ज्यादा बात नहीं बोलना है। मंच में अभी इतना देर तक हमारे सांसद भाई कल्याण बनर्जी ने भाषण दिया। मंच में उपस्थित है गोपाल बसो मीटिंगটা করতে এই দেবজ্যোতি এই সুজাতা তুমি বসো मंच में हमारा पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम उपस्थित है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योतिप्रिय मल्लिक उपस्थित है। नैहाटी के विधायक पार्थ भौमिक उपस्थित है और सुजाता मंडल जो अभी आई है। महिलाओं में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है।
सब लोग को मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर धर्मपाल गुप्ता नेता है, जीतू साहू है, देवज्योति घोष है और हमारा राउत भाई है, गोपाल राउत और स्थानीय नेता लोग हैं। मुझे आज एक बात याद होता है कि आज से एक देवज्योति বসো না, একটা জায়গায় বসো, কি করে মিটিং থাকে আপনারা বসুন না, কেন একটু চুপ করে বসুন। आज से 43 साल पहले सन 77 में मैं बैरकपुर क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार हुआ। यही गोलघर में हम लोग का आम सभा था। उस समय एमएलए थे सत्यनारायण सिंह। इंदिरा गांधी खुद आई थी मेरे लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद समय खराब हुआ। समय खराब हुआ, इंदिरा जी खुद हार गई, लेकिन मैं जीत गया। आज उस समय जो लोग थे बहुत लोग हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको याद करता हूँ। सत्यनारायण बाबू अभी नहीं है, मैं उनको याद करता हूँ। और भाटपाड़ा के जो लोग उतने साल पहले मुझे मदद किया था, उसको मैं याद करता हूँ। लेकिन आज जो समावेश हुआ है गोलघर में, भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस का पुकार में, वो मुझे 43 इयर्स के पहले का आम सभा को याद दिलाता है। और ये सभा देखने के बाद शायद अर्जुन सिंह रात में सो नहीं पाएगा, उसको नींद नहीं आएगा। तृणमूल कांग्रेस का पुकार में ममता बनर्जी के नाम पे यहाँ पर मौजूद हुआ। मैं अर्जुन सिंह के खिलाफ बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। मैं जब 77 में एमपी बना, शायद अर्जुन सिंह का 5-10 साल उम्र था। उनका पिताजी बाद में भी 87 में मेरे साथ विधायक थे। तो अर्जुन सिंह बच्चा है, उसको खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं दुखी हूं कि अर्जुन गलत रास्ता पे चले गए। आज अर्जुन सिंह के खिलाफ 30 ठो मुकदमा है, केस है, और उसमें हमारे कांग्रेस का नेता थे विकास बोस नोआपाड़ा के, उसको मर्डर का इल्जाम भी उनको खिलाफ था। आज अर्जुन कोई मजदूर का नुमाइंदा नहीं है, वो तो मेघना चटकल चलाते हैं बेनाम में और करोड़ों रुपया का मालिक है। दुबई में कारखाना है, दुबई में भी व्यापार है। भाटपाड़ा के लोग पैसे ही गरीब रह गया, लेकिन अर्जुन सिंह अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया। ये दुख का बात है, उसमें भी हमारा कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो जो पॉलिटिक्स करता है, जो पॉलिटिक्स है धमकाना डराना, जब तृणमूल में थे तब भी करते थे, और आज बीजेपी में जाके 40 ठो सेंट्रल फोर्स लेके वही काम अर्जुन सिंह कर रहे हैं। मैं आपको ये पुकार देता हूं कि आप लोग ये गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा हो जाइए। डर से पॉलिटिक्स बनता नहीं है, पॉलिटिक्स सिद्धांतों से, उसूलों से बनता है।
और पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई हम लोग छेड़े हैं ममता बनर्जी को नेतृत्व में, वो उसूलों का लड़ाई है, आदर्श का लड़ाई है। ये लड़ाई हमें आगे बढ़ाना है। अर्जुन सिंह हमारे पार्टी के साथ विश्वासघात किया। 2001 में ममता बनर्जी को जोड़ा फूल लेके वो जीता, 2006 में जीता, 2011 में जीता, 2016 में जीता। केवल 2019 का लोकसभा चुनाव के पहले वो लोकसभा में खड़ा होना चाहता था। ममता जी उनको बोले कि तुम इंतजार करो, लोकसभा में सिटिंग एमपी हमारा है, तुमको नॉमिनेशन नहीं मिल सकता, तो छोड़ के बीजेपी में चला गया। जो आदमी पद के लालच में पार्टी छोड़ देता है, पार्टी के साथ बेईमानी करता है, उसको कभी माफ नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और आप भी ये बात मान के चलिए। मुझे आज कहना है कि हिंदुस्तान में आप जानते हैं 6-7 साल से नरेंद्र मोदी राज कर रहा है। 7 साल हिंदुस्तान का हालत खराब होते गया। नरेंद्र मोदी अपना मत पे चलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी फिरका परस्ती का राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान में विभाजन करते हैं। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, ऑटोक्रेट है। वो जब नोटबंदी किया, देश में किसी को पूछा नहीं, करोड़ों लोग का दिक्कत हुआ। वो जब जीएसटी चालू किया, किसी को पूछा नहीं, करोड़ों लोगों का असुविधा हुआ। और ये कोरोना के समय नरेंद्र मोदी हमारा जो सरकारी कंपनियां था उसको बेच डाला। एयर इंडिया को बेच दिया, भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, कोयला खदान जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण किए थे उसको बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उसको बेच रहा है, हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको बेच रहा है। और ये जब सारा देश में कोरोना काल चल रहा था, उसी समय वो किसानों के खिलाफ 3 कानून पास कराए, जिससे किसानों का फसल पैदावार लेके कोई भी व्यापारी बिजनेस कर सकता है। इसके मतलब है नरेंद्र मोदी चाहते हैं हमारा कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपति सरमाएदारों के हाथ में जाए और अदानी अंबानी का पॉकेट भरे। इसी को खिलाफ पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान धरना पर बैठे हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ घेर के वो बैठा हुआ है और वो कहते हैं किसान विरोधी कानून जब तक प्रत्याहार नहीं होगा वो धरना नहीं उठाएंगे। मेरे ख्याल में जैसे पश्चिम बंगाल में सिंगूर नंदीग्राम को लेके किसानों का आंदोलन ममता बनर्जी का नेतृत्व में बाएं बाजू सरकार को उखाड़ दिया, ऐसे ही हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन नरेंद्र मोदी का सरकार को उखाड़ देगा, इसमें हमारा कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपको ये समझना है कि नरेंद्र मोदी के सरकार पूंजीपति के सरकार है। ये चटकल क्षेत्र है, एक के बाद एक चटकल है। ऑकलैंड है, ओवरली है, मेघना है, रिलायंस है, एंग्लो इंडिया है, रिलायंस बंद हो गया, नफरचंद है, नईहटी है, एक के बाद और नदिया है, एक के बाद एक
8 ठो चटकल है, केवल बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र 22 ठो चटकल है। मैं जब यहाँ से एमपी था, जनता पार्टी का सरकार था, यही यहाँ पर स्टेशन जगद्दल स्टेशन बनाने के लिए पहले कदम मैं उठाया था। रेल मंत्री अलेक्जेंडर झुकमिल मेरे समय राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज अर्जुन चटकल में कॉन्ट्रैक्टर मेघना से अभी पूरा डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, मजदूर का अधिकार नहीं है। जूट मिल में हम लोग जो यूनियन करते हैं बराबर से हम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ 0 नंबर के खिलाफ लड़ाई किए हैं। हम बराबर चाहते हैं कि चटकल में मजदूर परमानेंट हो या स्पेशल बदली हो, लेकिन अर्जुन रहते हुए भाटपाड़ा क्षेत्र में मजदूर को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये अर्जुन का खिलाफ जो लड़ाई है एक मालिक का खिलाफ लड़ाई, एक पूंजीपति शर्मादार का खिलाफ लड़ाई है, मजदूर के स्वार्थ में लड़ाई है। ये लड़ाई में हम तृणमूल कांग्रेस की ओर से आपको समर्थन चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ चटकल के भाइयों चटकलियों, भाई अर्जुन के खिलाफ आप लड़ाई करो, ममता बनर्जी आप लोग का साथ देगी, आपको किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, ये कठिन समय है। कठिन समय इसलिए है, आप देखते हैं ये कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ हिंदुस्तान में, उसको करने में देर हुआ। क्यों देर हुआ? क्यों नरेंद्र मोदी देश से लॉकडाउन किया? इसके कारण था, उसको दोस्त था अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो आने वाले थे। वो आके जो मोदी का शहर, अमित शाह के शहर अहमदाबाद गए, फिर दिल्ली आए, और ट्रम्प आने के कारण लॉकडाउन पीछे चला गया और लॉकडाउन पीछे गया, इसलिए कोरोना और भी बढ़ गया। मध्य प्रदेश को सरकार को गिराना था और ट्रम्प को वेलकम करना था। आज ये मोदी, नरेंद्र मोदी, यही अमेरिका जाके डाला शहर में, आवाज नारा उठाया, अगले बार ट्रम्प सरकार। अमेरिका के लोग क्या किया? एक लात मार के ट्रम्प को निकाल दिया। अभी भी ट्रम्प जाना नहीं चाहता, लेकिन मोदी था ट्रम्प के दोस्त। आज ट्रम्प को लात मार मिला, मोदी को भी लात मिलेगा, यही हमारा ख्याल है। दोस्तों, ये बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी इतना चिंतित है। आप हनुमान जाते हैं, राम के भक्त हैं। हनुमान जहां आके आता है, वो कूद के पड़ता है, धूप आवाज होता है। बीजेपी के जो हनुमान हैं, वो कूद के पश्चिम बंगाल के धरती पर आ रहे हैं। कौन? जेपी नड्डा। नड्डा की चड्डा पहले तो नाम भी नहीं सुना, वो भी बंगाल में आया। एक मोटा है अमित शाह, उसका नाम है मोटा भाई, गुजराती। मोटा भाई भी पश्चिम बंगाल में आ पहुंचा। एक है कैलाश विजयवर्गीय, डकैत है चंबल के, वो भी आ पहुंचा। ये सब लोग ममता जी का पीछे पड़ा हुआ। आज नड्डा आके एक सर्व भारतीय दल का अध्यक्ष होते हुए वो आवाज उठाया कि चल छोड़ टीएमसी, तिरपल छोड़ टीएमसी। अरे नड्डा, अपने औकात को समझो। तुम जो बोल रहे हो, तुम कोई सबूत दे सकते हो? तुम क्या ऑल इंडिया पार्टी के प्रेसिडेंट है, तुम्हारा शर्म नहीं होता कि बिना सबूत को तुम तृणमूल को चाल चोर बोलते हो? मोदी का दोस्त, वो लोग सब बैंक का रुपया लेके भाग गया देश से, उससे तुम चोर नहीं बनते हो? ये समझिए।
नरेंद्र मोदी का दोस्त है एक नीरव मोदी, वो 7,000 करोड़ लेके भाग गया हिंदुस्तान से। एक था विजय माल्या, वो 9,000 करोड़ लेके भाग गया। और वो लोग हमें बोलता है हम चल चुके। आप जानते हैं बंगाल में अम्फान हुआ था और अम्फान होने के समय बहुत नुकसान हुआ। हमारा हिसाब में 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था बंगाल में। केंद्रीय सरकार कितना रुपया दिया? 3,700 करोड़ रुपया। और राज्य सरकार कितना खर्च किया? 6,700 करोड़ खर्च किया। साला तुम हमको पैसा भी नहीं देते हो, फिर चोर बोलते हो। ये तो बड़ा अचरज बात है। पैसा जितना जरूरत था बंगाल को फिर से बनाने के लिए, वो रुपया तुमसे नहीं मिला, केंद्रीय सरकार से नहीं मिला। और आज तुम हमें चोर बोलते हो। अरे भाई, चोर तो तुम हो। दिल्ली से पश्चिम बंगाल को तुम डिप्राइव करते हो, वंचना करते हो। हम इसीलिए बीजेपी का खिलाफ हैं। बीजेपी को खिलाफ हम इसलिए हैं कि यह फिरका परस्ती के दल है। हमारा ये भाटपाड़ा क्षेत्र में 25% मुसलमान भी है। আমাদের ভাটপাড়া হিন্দু মুসলমান দুই আছে। কাকিনাড়া সাইডে অনেক মুসলমান ভাই আছে। বরাবর ভাটপাড়ায় শান্তি ছিল, কিন্তু আজকে যদি বিজেপি পশ্চিম বাংলায় আসে তাহলে এখানে রাইট দৈনিক ঘটনা হয়ে যাবে। আজকে তাই বলছি, এই বিজেপির হনুমানরা পশ্চিম বাংলা এলে এদের কথা শুনবেন না। অনেকে বলছে লড়াইটা বাঙালি আর গায়ে বেঙ্গলি। না, আমরা বলছি বাংলায় যারা থাকে তারাই বাঙালি। সে বাঙালি হোক, বিহারি হোক, হিন্দু হই, মুসলমান হোক। কিন্তু নাড্ডা বাইরের লোক, বাহারি। মোদি বাহারি, গুজরাটের লোক। অমিত শাহ বাহারি, গুজরাটের লোক। বিজয় বার্গিয়া বাহারি, মধ্যপ্রদেশের লোক। ওদের লড়াইটা বাইরের লোক নিয়ে, আর আমাদের লড়াইটা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলার লোক নিয়ে। আপনারা বাংলার লোকের সাথে থাকবেন না বাইরের লোকের কথা শুনবেন? এইটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আজকে এই লড়াইটা কঠিন। ওরা মমতাকে আঘাত করতে চায় কেন? তার কারণ মোদি জানে যে সারা ভারতবর্ষে যদি ওর বিরুদ্ধে সবাইকে এক করে কেউ লড়তে পারে, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। ওরা জানে যে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কারণ থাকে মমতা ব্যানার্জি। তাই মমতা ব্যানার্জিকে হারাবার জন্য এরা সবাই নেমেছে। কিন্তু মমতা কারোর বিরুদ্ধে করছে। অর্জুন আমাদের পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মুকুল রায় করেছে, শুভেন্দু অধিকারী করেছে। এতে কিছু আসা যায় না। গঙ্গা নদী থেকে 1 ঘটি জল নিলে গঙ্গা নদীর কিছু আসা যায় না। 2-4টে বেঈমান বেরিয়ে গেলে কিছু আসা যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস আমরা আপনাদের মতো লোকেদের সাথে নিয়ে লড়ব। আমরা আপনাদের সাথে থাকব। পশ্চিম বাংলায় বিজেপি চাইছে অশান্তি সৃষ্টি করতে। ওরা বলছে ওদের লোকরা মারা যাচ্ছে। কেউ লোক ধরুন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করলো, খুদকুশি করলো, ওরা তাকে বলছে বিজেপির শহীদ। কেউ শহীদ নয়। বিজেপি আন্দোলন করেনি, তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন করেছে। 93-এর 21শে জুলাই আমাদের 13টা ছেলে পুলিশের গুলিতে মরেছে। নন্দীগ্রামে আমাদের 14টা ছেলে মেয়ে পুলিশের গুলিতে মরেছে। সিঙ্গুরে আমাদের তাপসী মালিক সিপিএম এর লোকেদের হাতে মরেছে। শহীদ কাকে বলে মমতা ব্যানার্জি জানে, তৃণমূল কংগ্রেস জানে, বিজেপি জানে না। ওরা তো পেট মোটা সরমাদারের দল, পুঁজিপতির দল, ব্যাপারীদের দল। তাই এই লড়াই খুব জরুরি। বাঙালি বনাম বাহারি, बंगाल के लोग वर्सेस बंगाल के बाहर से आए हुए। चटकलिया तो लड़ाई
बड़े बड़े पूंजीपति सरमादारों से। ये लड़ाई में हम आपको समर्थन चाहते हैं। আপনারা জানেন কল্যাণ বলছিল যে মমতা এখন দুয়ারে সরকার নিয়ে এসেছে, বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এবং একবার স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড পেলে আপনার পরিবারের সবার 5 লক্ষ টাকা অবধি চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। শুধু আপনার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নয়, যে কোনো প্রাইভেট নার্সিং হোম সেখানেও 5 লক্ষ টাকার চিকিৎসা পাবেন। ভারতবর্ষে এত বড় স্কিম কোনোদিন নেই। আমরা আপনাদের কাছে বলতে চাই যে তৃণমূল কংগ্রেস 10 বছর ধরে বাংলায় উন্নয়ন করেছে। আপনি দেখবেন চারদিকে যা উন্নয়ন হয়েছে সব তৃণমূল কংগ্রেসের সময়। আর অর্জুন তো শুধু ঘাপলা করেছে। ভাটপাড়া পৌরসভার টাকা বেড়েছে, অর্জুন কোঅপারেটিভের টাকা বেড়েছে, মেঘনা জুট মিলে টাকা বেড়েছে, ওর ভাইপো বাপ্পু তো এখনো জেলে রয়েছে। এই চোরেদের প্রতিনিধি হচ্ছে অর্জুন, ভালো লোকেদের প্রতিনিধি হচ্ছে আমরা, আমাদের মঞ্চে যারা বসে আছে। তাহলে আপনারা বলুন, চোর অর্জুনের সাথে না সাধু টিএমসির সাথে? বলুন আমরা সাধু টিএমসির সাথে আছি, हाथ तुले बोलूं। आप बोलिए कि चोर अर्जुन के साथ रहेंगे कि साधु टीएमसी के साथ रहेंगे। ये चोरों को नहीं चाहिए, ये चोरों को नहीं चाहिए। भाटपाड़ा में हवा बदलना, जो भी करेगा आल करेगा, बैगन करेगा, जो करेगा अर्जुन करेगा। अर्जुन नहीं तो उसको बेटा पवन, नहीं तो उसको भतीजा सौरभ, यही लोग हैं भाटपाड़ा में। और पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं होंगे। आप लोग को आगे बढ़ के आना है और यही बड़ा चुनौती है। बंगाल का सामने जो चुनौती है, बंगाल को रखने के लिए चुनौती है, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती है। जो प्रोग्राम हम लोग लिए हैं लड़कियों के लिए, कन्याश्री 69 लाख बच्चियों को मौका मिला। जो प्रोग्राम हमने लिया है सबूत साथी 84 लाख लड़का लड़कियों को साइकिल मिला है। हमारा जो खाद्य साथी रेशन 8.5 करोड़ लोगों को कार्ड मिला है। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। मैं लंबा भाषण नहीं देने चाहता। ये यहाँ पर मौजूद है फिराद हाकिम, जो कोलकाता पौरसभा का मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर भी है, राज्य के मंत्री भी है, और ये पौर निगम उसके हाथ में है। वो शायद आपको बताएंगे कि भाटपाड़ा पौर निगम में कितना चोरी हुआ है। और अर्जुन का बात होता है, हम चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे। अरे भाई चोर सीना जोड़ मत दिखाओ। तो आज इसको बदलना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बहुत दिन के बाद मैं भाटपाड़ा में मीटिंग किया। मैं सोचा कि अरे बाबा अर्जुन तो बाघ है, लेकिन अभी देखा कि अर्जुन बिल्ली बन गया है। अर्जुन अब बाघ नहीं रहा। हम लोग हैं, ममता बनर्जी है, हम एक साथ लड़ेंगे। मैं सब लोग को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পৌরমন্ত্রী মাননীয় জনাব ফিরাদ হাকিম বাবু। আমার রাজনৈতিক গুরু, দমদমের এমপি, আমাদের দলের অত্যন্ত বিশিষ্ট নেতা
সৌগত রায় এক্ষুনি আপনাদের সামনে বলে গেলেন। আছেন আমাদের এই জেলার সভাপতি, আমার সাথে সহমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, আছেন পৌরসভার চেয়ারম্যান, আছেন আমাদের পার্থ ভৌমিক, আছে ফারাদ, আছে শ্যামদা বাবু, আছেন আমাদের ধর্মপাল, আছে অন্যান্য সব नेतृवृंद आছেন এবং আপনারা। मैं ये लेके कई बार भाटपाड़ा में आया हूं, मगर मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज लग रहा है जब पूरा भाटपाड़ा आज ये मैदान में आ चुका है। एक सौगत राय ने अभी कहा एक डर था जो एक भाटपाड़ा के डॉन वो बीजेपी में चले गया। कई धर्म स्थान में मस्जिद में बम मारा गया, कई आदमी को जख्मी कर दिया गया, मगर ये कोई धार्मिक आदमी नहीं किया। ये बाहर से जो गुंडा आया था उसे दिए कराया गया था। डर होना चाहिए उसके दिल में था, जो भाटपाड़ा के इंसान के ऊपर डर होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं जो जब लोग एक साथ हो जाते हैं तो डर नहीं होता है, जो डर दिखाने वाले को मरना पड़ता है, कोई डरता नहीं। सिर्फ इतने माँ बहन बैठे हुए हैं, एक एक बेलनी अगर लेके उसके दिमाग में मारेगा वो खत्म हो जाएगा। और कोई मजहब नहीं सिखाता है वो दूसरे मजहब के जबरदस्ती करने का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, एक साथ हमें रहना है। पुरखों तक रहे हैं और भी हजारों साल एक साथ रहना है। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदूवादी मुसलमानवादी कोई वादी नहीं, इंसानवादी होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के आदमी होना चाहिए। ये बीजेपी वाले, ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो असल मन है, जो हमें एक साथ रहना चाहिए, ये तोड़ना चाहते हैं। आरएसएस वाले कहते हैं भाई पाकिस्तान तो दे दिया है, वो तो मुसलमान राष्ट्र हुआ, तब क्यों हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा? क्या अम्बेडकर साहब बुद्धू थे? क्या नेहरू जी बुद्धू थे? क्या गांधी जी बुद्धू थे? क्या अबुल कलाम आजाद बुद्धू थे? उन्होंने सेकुलर कंट्री इसलिए बनाया क्योंकि 1/3 जो पाकिस्तान गया था, 2/3 हिंदुस्तान में मुसलमान रह गया, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और एक चीज समझ लीजिए, 14 तारीख को पाकिस्तान की आजादी हुआ था, 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी हुआ था। पाकिस्तान जब धर्म के रास्ता में चले गया, आज दुनिया का सबसे पीछे वाला राष्ट्र है पाकिस्तान। और हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष के रास्ता में गया था, वो जाके आज विश्व के जो 2-3 बड़े बड़े राष्ट्र है, उसमें हिंदुस्तान के नाम भी अदब से लिया जाता है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ही एक राष्ट्र को, एक देश को आगे बढ़ाता है। धर्म अंधता आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसके उदाहरण है बाद में बगल में बांग्लादेश। पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पहले धर्म के रास्ते में चला, मुसलमान राष्ट्र बना। आज 10 साल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना जी इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। आज बांग्लादेश का जीडीपी इतना बढ़ गया
जो मोदी जी जब यहाँ पर धर्म के राष्ट्र बनाने चाहते हैं, आज उनके जीडीपी से बांग्लादेश के जीडीपी बढ़ गया। बांग्लादेश आज आगे बढ़ जा रहा है क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष के रास्ता में, और 10 साल धर्म अंधता के रास्ता में हिंदुस्तान को पीछे ला दिया जा रहा है। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात हिंदुस्तान के रिकॉर्ड कहता है। अरे हम लोग को क्या छोड़िएगा, ये धर्मपाल गुप्ता है, मैं फिराद हकीमी हूं, क्या फर्क है? क्या फर्क है धर्मपाल जी, हमें क्या फर्क है? सिर्फ अगर उल्टा हो जाता, धर्मपाल हमारे घर में जन्म लेता, मेरे बाप के घर में, इनका नाम हो जाता धर्मपाल हकीम, और हम अगर जन्म लेते इनके पिता के पास, मेरा नाम हो जाता बॉबी गुप्ता। क्या फर्क? फर्क इंसान का होता है, कर्म में फर्क होता है। धर्म जोगी नहीं, कर्म जोगी होना चाहिए इंसान। कोई भी अगर कह सकता है नहीं फिराद हकीम कर्म नहीं करता है, तो ठीक है, उसके लिए जरूर है। बीजेपी वाले अगर कहते हैं नहीं ममता दी का 700 साथी भूल है इसे, तो हम मानते हैं भाई भूल है, तुम इससे आगे और कुछ बना सकते हो। नहीं, हमें कन्याश्री ये खराब है, और भी अच्छा करना चाहिए, हमें मानना चाहिए था। नहीं, हमें रूपोश्री इससे भी आगे और कुछ है, तो ठीक है, दे दो। नहीं, ये सब रास्ता में बीजेपी वाले नहीं जाएंगे। बीजेपी वाला जाएंगे तो फिर वही रास्ता, पर्सनल अटैक। अरे कोई चोर है, कोई गोरी चोर है, कोई कोयला चोर है। भैया, गोरू और कोयला हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। भाई, गोरू कहां से आता है? कहां से आता है? यूपी के बॉर्डर से आता है, बिहार के बॉर्डर से आता है, तो गुजरात से आता है, तो तुम्हारे पुलिस के वहां पर अंगूठी चोचता है। अच्छा, फिर जाता है कहां? फिर जाता है ये बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में। तो तुम्हारे जो बीएसएफ है वो किसके अंडर में है? वो किसके अंडर में है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। इसका मतलब गोरू चोरी का जो पैसा है वो यहाँ से बीएसएफ होके दिल्ली तक पहुंचता है, तो दिल्ली चोर है, हमारा बंगाल चोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज कोयला को लेके चोर 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 कह रहा है। कोयला किसके अंडर में है? कोल इंडिया के अंडर में है। कोयला का देखभाल कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोयला नहीं है। तो इसका जो चोरी होता है, इसका भाग कहां जाता है? दिल्ली में जाता है इसके भाग, यहाँ के भाग बंगाल में नहीं आता है। इसका मतलब चोरी का पैसा जो है वो दिल्ली खाता है, बंगाल नहीं खाता है। बंगाल को बदनाम किया जाता है। हम कहते हैं नहीं, बंगाल के आदमी बुर्बक नहीं है, बंगाल के आदमी बुर्बक नहीं है, बंगाल के आदमी ना समझ नहीं है। हम एक साथ रहना जानते हैं, और कौन ठीक है कौन भूल है हम जानते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ लाइन है। ये लोकसभा से पहले पुलवामा हुआ था। अरे भाई, हमें कभी कभी कहा जाता है अरे फिराद हकीम ने मिनी पाकिस्तान के मंत्री है। भाई, हम कभी पाकिस्तान नहीं कहा, हम कभी पाकिस्तान नहीं कहा, क्योंकि हमारे जो देश के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान हमारे देश के दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है। आज क्या हो रहा है? ये फिराद हकीम नाम है ना, तो थोड़ा से पाकिस्तान कह जाने से कम्युनलिज्म आ जाता है। ये काम बीजेपी वाले करते हैं, बांटने का काम, बांटने का, जोड़ने का नहीं, बांटने का काम करता है। अरे भाई, हम तो कुछ दिन पहले कोविड लिया, कोविड का 2 ट्रायल का टीका लिया, 2 ट्रायल का टीका लिया। बहुत आदमी कहा इसमें रिएक्शन हो सकता है, आपका तबीयत खराब हो सकता है, मर भी सकते हैं। हम बोले कोई परवाह नहीं, किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान के टीका है। अगर ये टीका ठीक हो गया तो हिंदुस्तान के आम जनता में मिलेगा। तो हमें कहा जो ठीक है दे दीजिए हमें। हम 2 टीका ले चुके हैं। किसके लिए लिए? हमारे
हमारे अगर देह में कुछ हो भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, हम मरते हैं तो देश के लिए मरते हैं, देश के टीका के लिए मरते हैं। मुसलमान टीका, हिंदू टीका नहीं, देश के टीका है, यही हिंदुस्तान के टीका है। हमें अपना वतन से प्यार नहीं है। हम कहा बी इंडियन टेक इंडियन, हम अपने वतन को प्यार नहीं करते हैं। हमें ठोक दिया जाता है, हमें ठोक दिया जाता है जो नहीं, ये वतन परस्त नहीं है, ये दुश्मन है। नहीं भाई, हजारों हजारों लोग हम एक साथ मिलकर जीते हैं और एक साथ रहते हैं और फिर गर्व के साथ कहते हैं ये हमारे वतन है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। अब बांटने का कोशिश करते हैं, अब नया बांटना एक शुरू हो गया। अरे ममता बनर्जी कहा था बहारी, तो आज हम सब बहारी लोग हैं, जो बंगला के नहीं है वो बहारी है। नहीं भाई, ममता बनर्जी बहारी के बात वो वजह से नहीं, बहारी का मतलब है बिहार, यूपी, इससे बहुत सारे आदमी हमारे भाई यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे जूट मिल के वर्कर यहां पर है। हम बहारी नहीं हैं, हम यहाँ वोट देते हैं, हम रहते हैं यहाँ पर। हम खुद, हमारे दादा बिहार से आए हुए थे, यहाँ पर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और गर्व के साथ रहते हैं। ये बंगाल की भूमि है, हम लोग सब इनका अधिकार के साथ रहते हैं। बहारी है जो इलेक्शन के समय आता है। यहाँ पर कोई सरोवर में देखिएगा, हम अलीपुर में रहते हैं, वहाँ पर चिड़ियाखाना में देखते हैं बहुत सारे पंछी जो है इसी समय उड़ 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 के आते हैं और पूरे सरोवर भरा रहता है। जब गर्मी आती है तो सब पंछी उड़ जाता है, फिर बेचारा राजहंस जो है वही घूमते रहता है सरोवर में। वो यहाँ पर भी होता है। इलेक्शन के समय जो नेता लोग आते हैं यहाँ पर, वो जो मोटा भाई एक है गुजरात से आते हैं, वो एक बोर्गी जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं, कोई गुंडा है वो यूपी से आता है। आके यहाँ जो बांटने का बात करता है, इलेक्शन से समय पंखी जो आता है उसे बहारी कहा जाता है। हम बहारी नहीं है, हम बहारी नहीं है। यहाँ पर हम जितने अधिकार के साथ रहते हैं, हमारे जो है बालू मुल्लिक या हमारे पार्थोभौमिक, वो एक ही अधिकार के साथ हम रहते हैं। हम बहारी नहीं है, हम अंदरी है, अंदरी, हम अंदरी है। तुम बहारी हो, तुम बहारी हो बुर्गी। शर्म लगता है हमें, जब हम देखते हैं हमें शर्म लगता है। बंगाल कितना नीचे आ सकता है। बंगाल के जो नेता वो जाके गुजरात के नेता के पांव पकड़ता है, कहता है हमें बंगाल में थान दे दीजिए, हम आपके पांव पकड़ते हैं। हमें शर्म लगता है, शर्म लगता है। जब कोई कहता है जो इसे गुजरात बनाया जाएगा, शर्म लगता है, क्योंकि गुजरात में 2000 आदमी का मृत्यु हुआ था, दंगा हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ था। बंगाल में दंगा नहीं होता है। ये टैगोर का बंगाल है, ये नजरुल इस्लाम के बंगाल है, ये श्री श्री रामकृष्ण का बंगाल है, ये हमारे विवेकानंद का बंगाल है। यहाँ पर दंगा नहीं होता है, यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं और सुंदर वातावरण में रहते हैं। ये बंगाल हमारे पूज्य भूमि है, ये बंगाल हमारा है, ये देश हमारा है। हम सब मिलके एक साथ रहते हैं। हमें भेदाभेद किया जाता है, हमें अलग करने की कोशिश किया जाता है। हमें कहा जाता है जो ये हिंदू ये मुसलमान नहीं। नजरुल के भाषा में हिंदू नवरा मुसलमान जिज्ञासे कौन कंडारी बोलो डूबी छे मानुष संतान मोर माँ। हिंदू नवरा वो मुसलमान ये पूछता है कौन। जो कंडारी होते हैं वो कहते हैं ये हमारे माँ के संतान है, ये इंसान है और इससे डूबने से बचाना एक लीडर के काम होता है और वही ममता बनर्जी करती है, इंसान को बचाती है। हम आपसे ये आवेदन करते हैं, इल्तिजा करते हैं, जो ये भड़काइए नहीं। एक तरफ बीजेपी आरएसएस आ रहा है, जो आरएसएस पाकिस्तान बनाया था,
एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ आरएसएस पूरा हिंदुस्तान को भड़काया था उस समय। ये पुराना चाल है, मस्जिद में जाके थोड़ा सा सुअर का गोश्त और मंदिर में जाके गोरू का गोश्त देके दंगा भड़काया जाता है। ये आरएसएस करता है, ये आरएसएस करता है। अरे भाई, जो बात कह रहे थे पाकिस्तान के, एक कागज में पाकिस्तान में निकला, वहां पर हमने गार्डन रिच को मिनी पाकिस्तान कहा नहीं, हम कहीं नहीं कहा। अगर कोई भी टीवी चैनल में दिखा दे, उस दिन हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। कोई भी टीवी चैनल, पाकिस्तान का कोई कागज, अरे पाकिस्तान के कागज तो हमारे पास नहीं आता है, बीजेपी के ऑफिस में आता है। पाकिस्तान से उसका लेन देन है, बीजेपी का लेन देन है पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान के कागज आता है। रात को प्रधानमंत्री प्लेन उड़ा के घुमा के पाकिस्तान में रात में चले जाते हैं। और पुलवामा जब आता है, जब इलेक्शन आते हैं मोदी जी का, तब पाकिस्तान के टेररिस्ट कहते हैं चलो पुलवामा अटैक करें, और वहां पर ब्लास्ट होता है, देश से प्रेम जगता है और सब मोदी जी को वोट देते हैं। गुंडा को भी यहाँ का आदमी वोट दिया था देश से प्रेम के लिए। और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, पाकिस्तान बोलता है बेटा सो जा, मोदी आ गया है बांग्लादेश में, भारत में, अब बेटा सो जा सो जा। फिर पाकिस्तान में टेररिस्ट सब सो जाता है, मोदी जी अपना 5 साल चलाता है। बारे 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 बीजेपी, बारे बीजेपी, पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा लेन देन भारत वर्ष में कोई पार्टी का नहीं था जो बीजेपी का है। और दूसरा और एक लाया है अभी, ये अपने आप को हिंदू पार्टी करता है, तो हैदराबाद से और एक मुसलमान पार्टी ले आया। चोर है चोर, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, हाँ वो आ गया। वोट बांटना है, वोट काटना है, उसका नाम है वोट कटुआ। वो वोट कटुआ वोट काटने के लिए आ गया। और यहाँ पर और 2-4 चमचा पमचा है यहाँ पर, वो फराज जानता है उसे, वो आता है तो वोट कटुआ आता है। अरे भाई, अगर हम मुस्लिम वोट काट लेंगे तो तृणमूल को नहीं मिलेगा, हिंदू के राष्ट्र इसमें वहां मिलेगा, ये ज्यादा मुसलमान करेगा तो हिंदू का वोट एक जगह हो जाएगा। हम बोला वाह, चलो एक ही राक्षस का दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों आ गया बंगाल में। दाहिना हाथ बायां हाथ एक ही राक्षस का आ गया। मगर फिर कहता हूं, बंगाल के अवाम, रविंद्रनाथ, नजरुल इस्लाम, आपके दिमाग जो है वो कई दिमाग से आगे है। बिहार की तरफ नहीं भूल करना है, जहां पर वो इसी वोट काटता है। और नीतीश जी का, वो बीजेपी का, नीतीश जी तो अभी चमचा बन गया, नीतीश जी नहीं, बिहार बीजेपी का गवर्नमेंट आता है। यूपी में देवबंद में वोट काटा जाता है और वहां पर जोगी पागल का गवर्नमेंट आ जाता है। यहाँ पर हम सुखी हैं, हम अच्छे हैं, हम आबाद हैं, हमें एक साथ रहना है। और ममता दी के साथ एक साथ मिलके हमें नया बंगाल की स्थापना हो चुका है, उसे और भी आगे बढ़ाना है। क्या ममता दी ने काम नहीं किया? मायो बहुत काम कर, আপনাদের জিজ্ঞেস করছি মায়েরা, এখানে একটা স্লোগান ছিল, গরিবের ভোটে সরকার আসে, সরকার চলে যায় বড় লোকের পাশে। গরিবের ভোটে সরকার আসে, সরকার চলে যায় বড় লোকের পাশে। হ্যাঁ, গরিবের ভোটে সারা ভারতে মোদিজি এসেছিলেন। সেই মোদিজি এখন আদানি আম্বানির জন্য কৃষক হত্যা করছেন। 60 জন কৃষক মারা গেছে। মোদিজির কোনো দরকার নেই, 5টা সোয়েটার পরে রুম হিটার চালিয়ে বসে আছেন। কৃষক মরে মরুক, আমার আদানি আম্বানি থাকলেই ভোটের সময় মাল আসবে, সেই মাল দিয়ে আমার ইলেকশন হবে। বাহ বাহ বাহ। এই जो देखिए कितना रुपया का घोपला, देखिए हम लोग बीएसएनएल आगे व्यवहार कर रहे थे, बीएसएनएल कर रहे थे ना, बीएसएनएल आज चलता नहीं, हम लोग फेंक दिया। फिर वोडाफोन और एयरटेल टराई जो है वो काट रहा, 1 मिनट हो जाए से लाइन कट जा रहा, लाइन कट जा, दौड़ साला फेंक इसको।
फिर क्या ले रहे हैं अभी हम लोग? क्या है ये? देखो जियो है, जियो जियो, सब जियो। अब जियो मोदी जी का हेल्प में जियो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 130 करोड़। अगर सब ने जियो ले लिया तो जियो का धंधा कितना हो जाएगा? 50 लाख करोड़ रुपया का धंधा हो जाएगा। 130 करोड़ घर में अगर जियो चलेगी, कितना रोजगार होगा? 50,000 करोड़। तो 5-10 हजार करोड़, 50 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ अगर मोदी जी का बीजेपी फंड में दे दिया तब भी जियो जियो जियो। इसमें उनका पेट नहीं भरा, इनका पेट इसमें नहीं भरा। अब एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री थे, उसे इतना पैसा देके प्रधानमंत्री बनाया गया। बीजेपी में बड़े बड़े नेता थे, एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, तब अरुण जेटली जिंदा थे, सुषमा स्वराज जिंदा थे। इन्हें नहीं गुजरात से ले आके प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि अदानी अंबानी का पैसा बीजेपी में देना है, तो उसे जो बोलेगा वही करना है। अब ये बेनिया है, ये बेनिया है, तो कहता है भाई हम 1 पैसा देंगे 10 लाख लेंगे, तो जियो का पैसा हो गया। अब बोलता है नहीं किसान के पैसा चाहिए, किसान के 3 ठो बिल सुन लो बाबू, किसान के 3 ठो बिल। एक बिल किसान के, ये किसान मंडी में किसान के माल नहीं बिक्री होगा, ये किसान के मंडी जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आएगा वो पूरा माल खरीद लेगा किसान के। दूसरे, चावल के लिए किसान को जैसा यहाँ पर है, मुख्यमंत्री ने 480 रुपया, तई तो बोलू 480 रुपया क्विंटल बांध दिया जी। इसके नीचे किसान से कोई नहीं खरीद सकता, गवर्नमेंट भी नहीं, वो उठा दिया गया। अगर बड़े बड़े कंपनी चाहते हैं तो 200 रुपया में भी वो माल खरीदेंगे। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उठा दिया। होर्डिंग जो है वो पूरा जितना इच्छा माल गोदाम में रख लो, फिर पब्लिक को घेच को ला, पब्लिक को चाहो तो 1 रुपया का माल 10 रुपया में बेचो। अगर पूरा किसान बाजार ले लिया अदानी अंबानी तो कितना रुपया का धंधा होगा? ये था 50 लाख करोड़ और वो हुआ 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ धंधा हो गया। पूरा भारतवर्ष का जो बजट है उससे बड़ा मार्केट अदानी अंबानी के पास चले गया। आस्ते आस्ते पूरा भारतवर्ष खरीद लेगा और एक दिन वही भारतवर्ष बीजेपी बना के छोड़ेगा। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय अदानी एंड अंबानी, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय अदानी अंबानी। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये करेगा, इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष करना है, इसके खिलाफ लड़ना है। और ये लड़ाई, ये 2-4 चमचा कहां से इधर से उधर गया, क्या हुआ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल से ये लड़ाई शुरू हो गया है और इसके नेत्री है ममता बनर्जी। इसलिए हम कहते हैं ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई लड़ेगा और आज नहीं तो कल फिर महामान्य गोखले की तरह कोई भी कहेगा व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष, इंसान, साधारण इंसान के लिए भारतवर्ष, किसान के भारतवर्ष, मजदूर के भारतवर्ष, गरीब तख्त के भारतवर्ष, वो भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। मोदी और बीजेपी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत हम अपने जनता के है, আমাদের ভারতবর্ষ আমরা চালাবো। মমতা তুমি লড়াই করো, আমরা তোমার সাথে আছি, আমরা তোমার সাথে আছি, আমরা তোমার সাথে আছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ ববিদাকে। মাননীয় পৌরমন্ত্রী আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন নৈহাটির বিধায়ক লড়াকু নেতা পার্থ ভৌমিক। উনি
এখন টিভি চ্যানেলে যাবেন, ওই জন্য উনি বক্তব্য রাখতে ইচ্ছুক হচ্ছেন না। তাই আমরা ওনার অনুমতি নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা মা বোনেরা যারা এখানে রয়েছেন, যার জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে রয়েছেন। সুজাতা মণ্ডল, মাঝখানে সুজাতা দিকে দেব, তার মাঝখানে ছোট্ট একটু আমাদের জয়নিং আছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারপারসন ফণিদা অরুণ ব্যানার্জি রয়েছেন, হিমাংশু সরকার বিরাট মিছিল নিয়ে এসছেন, জনক চৌধুরী অনেক বড় মিছিল নিয়ে এসছেন, মনোজ পান্ডে অনেক বড় মিছিল নিয়ে এসছেন। আমরা বলতে পারিনি, এখন বলছি প্রচুর মানুষ এসছেন এখানে, ঐতিহাসিক সমাবেশ। রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, আমরা দুজনকে জয়েন করাচ্ছি। এদের সঙ্গে আরো অনেক সমর্থক নিয়ে এরা সিপিএম থেকে জাহিদ ইকবাল সিপিএম থেকে জয়েন করছেন। সিপিএম থেকে ওনার নেতৃত্বে কয়েকশো সিপিএম কর্মী জয়েন করছেন। আমরা ওনাকে আমাদের এই তৃণমূলের সংসারে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রাক্তন হেড টিচার উনি, ওনার নেতৃত্বে বহু মানুষ আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। ওনার হাতে আমরা আমাদের পতাকা তুলে দিলাম। আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন বহু মানুষ, ধর্মেন্দ্র সিংকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত নাসির খান, আমাদের মধ্যে শঙ্করী দত্ত কাউন্সিলর, আমাদের মধ্যে রয়েছেন বহু মানুষ, জিতু সাউ আমাদের টাউন প্রেসিডেন্ট, যাদের নাম আমি বলতে পারিনি, এছাড়া অনেকে রয়েছেন, বিমান বোস আমাদের প্রবীর বৈদ্য কাউন্সিলর, সমস্ত স্তরের মানুষ। মাকসুদ আলম আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদের শ্যামনগর কাউগাজী পঞ্চায়েতের মেম্বার অমিত এবং প্রিন্স, আমাদের যুব নেতৃত্ব যারা দিন রাত পরিশ্রম করেছে, ওরাও আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ফরাদ ভাই, আমরা ওনাকে স্বাগত জানাই। দেবজিৎ সরকার আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। সর্বস্তরের অমিত গুপ্তা, সবাইকে, সর্বস্তরের মানুষকে আমরা সাধুবাদ জানাই, স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের খুব ভালো লাগছে, শর্মিষ্ঠা দাস আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বার, আমাদের তৃণমূলেরই ছিলেন, কিন্তু ওনার পরিচয় দিই, বিগত নির্বাচনে ইনি আমাদের এখানকার যিনি এমএলএ হয়েছেন তার ড্যামি ক্যান্ডিডেট হিসাবে ছিলেন, অর্থাৎ উনি বিজেপির সঙ্গে ছিলেন। উনি ভুল বুঝতে পেরে আমাদের সঙ্গে আবার এসছেন, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই। শর্মিষ্ঠাকে একটু সামনে আসতে বলছি। শর্মিষ্ঠা খুব লড়াকু মেয়ে, আমরা আমাদের খুব কাছে, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এবার আমি সুজাতা খা মণ্ডল, ওনাকে যার বক্তব্য শোনার জন্য আজকের দিনে আপনারা মহিলারা জানেন উনি একজন তপশিলি পরিবারের মহিলা এবং ওনার যে লড়াই, সে লড়াই আমরা সকলেই জানি। ওনাকে আমি আহ্বান করব আমাদের এই মঞ্চে ওনার সুন্দর বক্তব্য রাখবার জন্য। সুজাতা মণ্ডল, ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম। ছোট ভাইকে বলতে দাও। নমস্কার। ভাটপাড়ায় প্রথমবার এসেছি। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় অভিভাবক, আমাদের মহানাগরিক ববি হাকিমদা এবং আমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃসম আমাদের সকলের, সৌগত রায়দা, এখানে ধরমপাল কাকু আছেন, অমিতদা রয়েছেন এবং আমাদের এখানে সকলেই যারা রয়েছেন, আমার এখনো সকলের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে উঠতে পারিনি, আমাদের পার্থদা এবং সবার উপরে আপনাদের উত্তর 24 পরগনার যিনি অভিভাবক সেই বালুদা অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রণাম অভিবাদন জানাই। এবং আজকে যাদের জন্য আজকে আমার এবং আমাদের সমস্ত নেতৃত্বের এখানে আসা এবং আমরা সবাই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে এতটা জোর গলায় আশার আলো নয় বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছি যে আমরা
अगली बार फिर से ममता सरकार এবং এটা আমরা করে দেখাবো সেই আপনাদের চরণে জানাই শত কোটি প্রণাম क्योंकि अगर आप लोग नहीं रहोगे तो सच में हम लोगों की कोई वजूद नहीं आप लोगों की वजह से एमएलए बनता है एमपी बनता है मिनिस्टर बनता है